ایران سے بلوچستان بڑے پیمانے پر کھلے عام ایرانی پیٹرول اور ڈیزل کی سمگلنگ جاری ہے۔ یومیہ 80 سے 90 لاکھ لیٹر پیٹرول اور ڈیزل ایران سے پاکستانی سرحدوں میں سمگل کیا جا رہا ہے۔ ایران سے سمگل کیے گئے پیٹرول اور ڈیزل کا 45% سندھ اور 40% پنجاب اور خیبر پختونخوا سمگل ہو رہا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی سندھ میں سمگلنگ پر سندھ حکومت خاموش تماشائی ہے۔ وزیر داخلہ سندھ، آئی جی سندھ اور ڈی آئی جی لاڑکانہ موقف دینے سے گریزاں ہیں۔ لاڑکانہ سے میرا نام ہے شہزاد علی خان۔ لفظ اسمگلنگ کا مطلب ہے غیر قانونی تجارت۔ یہ لفظ ذہن میں آتے ہی جو سب سے پہلا خیال جاتا ہے وہ اس بات پہ جاتا ہے کہ شاید ناجائز اسلحے اور منشیات کی بات ہو رہی ہے، لیکن اسمگلنگ ایک انتہائی گہرے مفہوم کا حامل لفظ ہے۔ آج جو ہمارا فوکس ہے وہ ہے کہ کس طریقے سے ایرانین پیٹرول جو کہ پاکستانی سرحد میں داخل ہو کے ہماری اطلاعات کے مطابق 30 روپے فی لیٹر پڑتا ہے، وہ کس طریقے سے لاڑکانہ ڈویژن کے مختلف اضلاع میں آ کے غیر قانونی طور پہ غیر رجسٹرڈ پیٹرول پمپس پہ 270 روپے تک کا فروخت ہو رہا ہے۔ آخر اس کے درمیان میں جو منافع ہے وہ حکومت پاکستان کو نہیں مل رہا، حکومت بلوچستان کو نہیں مل رہا، تو وہ کن کی جیبوں میں جا رہا ہے؟ سالانہ وفاقی حکومت کو اس سمگلنگ کی مد میں تقریباً 250 سے 300 ارب روپے کا ٹیکہ لگتا ہے۔ دہائیوں سے یہ اسمگلنگ کا نیکسس کام کر رہا ہے اور یہ اسمگلنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک ایکسکیوز دیا جاتا ہے کہ بلوچستان کے حالات کی وجہ سے اسمگلنگ جو ہے وہ واحد کاروبار کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں گے، کوشش کریں گے یہ جاننے کی کہ اس اسٹیٹمنٹ میں کتنی صداقت ہے۔ ہم یہ آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے کون سی گاڑیوں کا استعمال کیا جاتا ہے آئل سمگلنگ کو ممکن بنانے کے لیے، اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ نیکسس اور اس سے مستفید ہونے والے جو لوگ ہیں وہ کب اپنے جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچیں گے، اور آخر کب تک یہ ملک جو ہے وہ اس طرح کے غیر قانونی کاروباروں کا خمیازہ بھگتتا رہے گا۔ سفر کا آغاز کریں گے بلوچستان کے مختلف علاقوں سے کہ آخر یہ نیکسس کام کس طریقے سے کرتے ہیں، تو چلتے ہیں، سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ایرانی آئل سمگلنگ بلوچستان میں زیادہ تر زمباد نامی نیلے رنگ کی گاڑیوں اور 30,000 لیٹرز کی گنجائش والے بظاہر ٹرک نما دکھنے والی مازدا گاڑیوں میں خود ساختہ اسٹوریج ٹینکس نصب کر کے کی جاتی ہے، جبکہ بیشتر علاقوں میں اس کی ترسیل کے لیے مخصوص کاروں اور بظاہر مسافر وینز نظر آنے والی گاڑیوں کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ میرے عقب میں جو گاڑیاں نیلے رنگ کی آپ دیکھ رہے ہیں اور ان کے اوپر پلاسٹک کے کینس، اس کو بلوچستان میں زمباد کہا جاتا ہے۔ بیسیکلی ماشکیل کے علاقے اور ایران سرحدی پٹی کے سے منسلک جو دیگر مختلف مقامات ہیں، وہاں سے یہی گاڑیاں جو ہیں وہ ٹریول کرتی ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے وہ ڈیزل اور پیٹرول ہوتا ہے، اور وہ پھر بلوچستان کے مختلف اسٹوریج کیمپ تک پہنچتا ہے اور اس کے بعد پھر ملک کے مختلف حصوں میں جاتا ہے۔ اب یہ سارا سلسلہ کام کیسے کرتا ہے؟ ہمارے ساتھ کوئٹہ کے رپورٹر ہمارے بول نیوز کے دانش مراد صاحب بھی موجود ہیں، اور نوشکی کے جو بول نیوز کے رپورٹر ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جس کام کو جو پیٹرول اور ڈیزل کا ایرانی پیٹرول اور ڈیزل کا کام ہے، اس کو اسمگلنگ یا غیر قانونی کام کہا جاتا ہے، لیکن یہاں کے لوگ مقامی آبادی ہیں، یہاں پہ کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں یہ غیر رسمی باغی ٹریڈ ہے، تجارت ہے، اور ہم لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو انہی روزگار کے ذریعے پالتے ہیں، یا کوئی دوسرا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی روزگار کا ذریعہ نہیں ہے۔ اچھا، ان میں ان لوگوں کو یہاں تک تیل کی ترسیل میں اور پھر یہاں سے آگے دیگر صوبوں میں اس کو پہنچانے میں کن تکلیفوں کا سامنا رہتا ہے، اور جو ہے بلوچستان حکومت اس سلسلے میں کیا کرتی ہے؟ قدوس بسنجو نے اپنے دور میں بہت کوشش کی اس کو لیگل کرنے کی، لیکن وہ کیا محرکات تھے جس کی وجہ سے لیگل نہیں ہو پایا، وہ تو ان کو پتہ ہوگا۔ لیکن یہاں پر یہ کہ اپنی جانوں پر کھیل کر یہاں تک پہنچاتے ہیں، پھر اس کے بعد یہاں سے پاکستان کے دیگر علاقوں میں یہ جو ہے اس کی ترسیل ہوتی ہے، سندھ میں ہوتی ہے، باقی علاقوں میں۔ اب جو سب سے بڑا یہاں پر یہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو لیویز الگ ان سے بھتہ لیتی ہے، پولیس الگ ان سے بھتہ لیتی ہے، یہاں کے مقامی جو لوگ ہیں وہ ان سے جو وڈیرے میر صاحبان ہیں وہ الگ اپنا ایک مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنا ان کا ٹیکس ہے وہ الگ لیتی ہے۔ یہاں پر جو روزگار ہیں وہ ایک تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ جو یہ چیزیں جو چل رہی ہیں یہاں پر گورنمنٹ لیگلائز کرنا چاہتی ہے، آن دی ریکارڈ آف دی ریکارڈ دونوں طرح۔ بلوچستان اراضی کے تناسب سے ملک کے 42% رقبے کا حامل ہے۔
जगराफियाई एतबार से बलूचिस्तान की मुल्की सरहदें सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से मिलती हैं, जबकि बैनुल अक़वामी सरहदें पड़ोसी ममालिक अफगानिस्तान और ईरान से मिलती हैं। अच्छा, हमारे साथ एक यहाँ के मुकामी शहरी हैं, वो बात करना चाहते हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं? जी भाईजान, असल तो बात यह है कि ये हमारी जो बलूचिस्तान है, ये जो हमारी शहर कोयटा है, यहाँ पे इंटेल के अलावा कोई और कारोबार नहीं है। बेशक इन पे सब कुछ है, लेकिन बेरोजगारी की वजह से लोग 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं, वो इसी वजह से। बाकी जो लेवीज है, जो पुलिस है, जो कस्टम है, वो बिल्कुल ले रहा है, बगैर लेने के कोई भी नहीं छोड़ रहा है। बलूचिस्तान के जो लोग हैं, उनका मुआशी जो सिस्टम है वो इन्हसार करता है बॉर्डर, क्रॉस बॉर्डर तिजारत के ऊपर। अब जो अदाद शुमार, वैसे तो इस कारोबार के जो स्टैटिस्टिक्स है वो किसी के पास भी नहीं है, ना तो हुकूमत के पास इसके, क्योंकि ये गैर कानूनी तौर पे चूँकि ट्रेड किया जाता है, इसलिए स्टैटिकल फिगर किसी के पास नहीं है। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 2 अरब 80 करोड़ लीटर पेट्रोल और डीजल जो है वो सालाना ईरान से बलूचिस्तान के अंदर दाखिल होता है, और वो फिर उसका 45% सिर्फ जो है वो सिंध में जाता है, 25% KPK और पंजाब में जाता है, और बाकी जो है वो बलूचिस्तान की ज़रूरियात को पूरा करता है। और योमिया तकरीबन 90 लाख से 1 करोड़ लीटर पेट्रोल जो है और डीजल, ये पेट्रोलियम मसनूआत बॉर्डर क्रॉस करती है, और वो मुख्तलिफ रास्तों से यहाँ तक पहुँचती हैं। कौमी ख़जाने को तकरीबन जो एक अंदाजे के मुताबिक कोई 300 अरब रुपए का सालाना जो है वो इससे नुकसान पहुँचता है, और ये सिलसिला साल से जारी है। यहाँ के लोगों का मुतालबा है कि इस ट्रेड को लीगल बना दिया जाए, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई जरिया मौज। मैं इस वक्त कोयटा के इलाके हज़ारगंजी में मौजूद हूँ, और यहाँ पे ईरानी बॉर्डर, पाकिस्तान ईरान सरहदी पट्टी जो माशकेल का इलाका है, वहाँ से फिर जो है वो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ डीजल और पेट्रोल जो है वो मुख्तलिफ स्टोरेज टैंक्स में स्टोर करने के लिए यहाँ पे लाया जाता है, और फिर यहाँ से जो है वो फिर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, ख़ासकर सिंध के अंदर जो है वो इसकी तरसील को मुमकिन बनाया जाता है। हमारे साथ यहाँ के कुछ मुकामी ताजर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। अब आजकल क्या सूरत हाल है आपके कारोबार? कारोबार नहीं है, बिल्कुल है नहीं कारोबार। आज जावे इधर कारोबार, पुलिस वाला भी तंग करना है, लोग भी तंग करना है। पहले कारोबार सही था, अभी तो बिल्कुल है नहीं है, बिल्कुल है नहीं। रास्ते भी सारे लोग, बेरवर लोग भी जलील करने हैं, हमारा को भी जलील करने हैं, कारोबार है नहीं। तकरीबन बलूचिस्तान में बताया जाता है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक कि 10 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं वो इस तेल के कारोबार से मुंसलिक हैं। हम अपने सफ़र को जारी रखेंगे और उन रूट्स के मुतालिक भी आपको बताएं। मैं इस वक्त बलूचिस्तान के इलाके मस्तूम के एक शाहराह पे मौजूद हूँ, जिसे कानक दुलय कहा जाता है। ये मेन रूट है जो कि स्मगलर्स इस्तेमाल करते हैं। कि जितनी भी गाड़ियाँ आप मेरे अकब में देख रहे हैं, क्या ये आपको बज़ाहिर मुसाफिर वैन नज़र आ रही होगी, लेकिन ये मुसाफिर वैनें नहीं हैं। इन्हें काट के इनके अंदर टोटल जो है वो ईरानी डीजल और पेट्रोल इस शाहराह से स्मगल किया जाता है। यहाँ पे आपको प्रीमियम गाड़ियाँ, यहाँ पे आपको बैनुल अक़वामी मुख्तलिफ कंपनियों की गाड़ियाँ जो है ना वो नज़र आएंगी, लेकिन ये तमाम नॉन कस्टम पेड गाड़ी। इस वक्त बलूचिस्तान में आप हमें बता सकते हैं कि कौन कौन से इलाके में पेट्रोल का क्या रेट चल रहा है ईरानी? सर, यहाँ बलूचिस्तान में आप यहाँ से सूरब चले जाएं, वहाँ पे लगभग जो है तकरीबन 155 रुपये फी लीटर होगा। और यहाँ से जब आ जाता है ये ज़िला मस्तूम, यहाँ पे लगभग जो है तकरीबन 160 रुपये फी लीटर होगा। और यहाँ कोयटा शहर में और 70 से लेके 75 रुपये तक फी लीटर यहाँ पे फ़रोख्त हो रहा है। बॉर्डर पे ये कितने का आता है? बॉर्डर पे मैंने सुना है ये 30 रुपये लीटर का होता है। जी सर, 30 रुपये वाकई। बॉर्डर पे जो पेट्रोल पाकिस्तान के बॉर्डर पे पहुंचता है तो ये 30 रुपये लीटर का होता है, और जब ये बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 150-60 रुपये से 170-80 रुपये 90 रुपये तक ये फ़रोख्त होता है। और उसके बाद जब ये सिंध में जाता है तो फिर ये जो हमारे पाकिस्तानी पेट्रोल के जो नर्ख हैं उनके ऊपर बिकता है। तो इस सारे जो मामले हैं इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होते हैं वो स्मगलर को। बलूचिस्तान के अंदर नौजवान ज़्यादातर जो है वो तेल की स्मगलिंग के कारोबार से मुंसलिक हैं, ये गैर कानूनी है। लेकिन इसकी वजूहत क्या है?
इसका वजूहत ये है सर, माशा है टैक्स लेना है, लेकिन दुकान में पहुंच जावे, घर में आ जावे, फिर भी पैसा मांग रहा है और रोजगार पे भी नहीं चल रहा है। और बलूचिस्तान में इधर कोई रोजगार नहीं है, ये लोग वापस चोरी पे मजबूर हो रहा है। अब सूरत हाल ये है यहाँ पे कि आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये एक पेट्रोल पंप का स्टोरेज टैंक है और इस स्टोरेज टैंक के अंदर पेट्रोल को जो है वो स्टोर किया जाता है और फिर पाइपों के ज़रिए अंडरग्राउंड लाइनिंग के ज़रिए ये मशीनों के अंदर लाया जाता है और फिर जनरेटर की मदद से ये गाड़ियों के अंदर फिल किया जाता है। इन्हें किसी तरह की जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सोलर के ज़रिए भी इस चीज़ को इस्तेमाल, अपनी इलेक्ट्रिक मशीनरी को इस्तेमाल कर लेते हैं और जनरेटर्स के ज़रिए भी मशीनों का इस्तेमाल कर लेते हैं। बलूचिस्तान में खुलेआम ईरानी तेल की स्मगलिंग के मुतालिक जब बोल न्यूज़ ने तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद अहमद रिंद से वजूहात जानना चाहिए तो उन्होंने सूबे भर में खुलेआम इस गैर कानूनी तिजारत के होने का पहले इनकार किया और फिर कहा कि इसे रोकना हुकूमत बलूचिस्तान की जिम्मेदारी ही नहीं है, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरअक्स। यहाँ पे कोयटा की गिरदो नवाब मंडियाँ हैं जहाँ पे हज़ारों की तादाद में दुकानें और सैकड़ों की तादाद में ट्रक्स और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो फ्यूल से भरी हुई हैं और वो बलूचिस्तान की शाहराहों पे ट्रैवल कर रही हैं। ईरानी ऑयल बलूचिस्तान के जिन इलाकों में आता है, इसे रोकना गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसे रोकना रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान कस्टम्स की और जो अपनी जॉइंट चेक पोस्ट बनी हुई वहाँ पर उन्हें रोकना उनकी जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत के मातहत जो इदारे हैं उनमें लेवीज़ और पुलिस हैं। लेवीज़ और पुलिस को सिर्फ जो जॉइंट चेक पोस्ट कायम की गई हैं जहाँ पर कस्टम्स भी मौजूद है, FC भी मौजूद है, दीगर इदारे भी मौजूद हैं। चंद इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जगह जगह पेट्रोल है और उसमें लेवीज़ की भी पेट्रोल है, जगह जगह पेट्रोल है। हमने देखा कि वो हर गुजरती हुई गाड़ी से वो उनसे मुलाकात करते हैं, उनको देखते हैं, उनको जानते हैं और उनको आराम से जाने देते हैं। तो ये जो रवानी के साथ वो उनको जाने की इजाज़त देते हैं, तो ये भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट की इजाज़त। देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि एंटी स्मगलिंग लेवीज़ और पुलिस की सपोर्ट का काम है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगो ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए इस बात का एतराफ़ किया कि बाअसर शख्सियात के ईरानी ऑयल स्मगलिंग में मुलव्विस होने पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की रिपोर्ट आ चुकी है, जिस पर गौर भी किया जा रहा है। उनका मजीद कहना था कि बलूचिस्तान में गुर्बत के बायस दो तरफा गैर कानूनी तिजारत का सिलसिला जारी है और इसकी रोकथाम के लिए बनाई गई चेक पोस्ट्स की कारकर्दगी खातिर ख्वाह नहीं है। पब्लिक को रिलैक्स करने की हद तक गवर्नमेंट उसमें कुछ रिलैक्सेशन लाती है, लेकिन अलबत्ता जो करप्शन की इस मद में होता है, जिसकी नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है, उसको अभी फैसला किया गया है बिल्कुल भी बर्दाश्त। 2 करोड़ अवाम बलूचिस्तान का कहता है कि यहाँ चेक पोस्टों पर करप्शन है, चेक पोस्टों से में बता लिया जाता है, लेकिन मैं आपके चैनल की तवज्जुह से सब बलूचिस्तानियों को कह रहा हूँ, आप सिर्फ एक बंदे के खिलाफ सबूत ले आए जो आप लोग के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, सरकारी एहलकार है और इस चीज़ में, इस आड़ में वो लोगों को तंग कर रहा है, तो हम उसको फ़ौरन एक्शन लेंगे कि वो आइंदा कोई एहलकार ऐसे करने पर 100 बार। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ईरान और अफगानिस्तान से पेट्रोलियम मसनूआत समेत दीगर अशिया की बलूचिस्तान में स्मगलिंग का एतराफ़ करते हुए कहा कि ये सिलसिला अरसा दराज से जारी है। अहम चंद मसाइल ऐसे भी हैं जिन्हें हल करना इंतहाई ज़रूरी है, जबकि वफाकी और सूबाई हुकूमत अब इस हवाले से इक़दामात भी उठा रही है। कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके एड्रेस करना भी बड़ा ज़रूरी है, ख़ासकर पाकिस्तान में। आप कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान का ईरान के साथ और अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, ये वो इलाके हैं जहाँ से इन चीज़ों की आमद व रफ्त होती है, जिसके लिए गवर्नमेंट्स ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, सूबाई गवर्नमेंट्स ने भी स्टेप लिए हैं और कॉमर्स मिनिस्ट्री भी अपने वो सारे स्टेप्स, इनिशिएटिव्स ले रही है हर लिहाज से, ताकि हम इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता कम करें, लेकिन साथ साथ हम उन इलाकों में, उन रीजन्स में वो काम भी करें जिनसे लोग अपने लिए एक रोज़गार कमा सकें, अपने लिए काम कर सकें, उनकी मईशत वहाँ बेहतर हो सके। वक्त भी हम जिस चेक पोस्ट पे मौजूद हैं
डेरा मुराद जमाली टूल प्लाजा पे ये कायम है। वहाँ पे जो कस्टम्स के जवान हैं, FC बलूचिस्तान के जो जवान हैं और जो पुलिस के जवान हैं, वो अपने पेशा वाराना फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। हर आने जाने वाली गाड़ी को चेक किया जाता है, ट्रक को चेक किया जाता है। उसके अलावा बेशतर सामान जो है वो स्मगल शुदा जो है वो यहाँ पे पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद यहाँ पे स्टोर किया जाता है और स्टोर करने के बाद जो है वो कस्टम पाकिस्तान के हवाले जो है वो कर दिया जाता है। जी, मैं इस वक्त सिंध बलूचिस्तान के बॉर्डर के इलाके डेरा वाला यार और जैकाबाद के दरमियान खड़ा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्टली बॉर्डर पे खड़ा हूँ। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये चेक पोस्ट है जहाँ पे ऊपर नेशनल हाईवे के एरियाज भी बताए हुए हैं कि यहाँ से सखर कितना किलोमीटर है, लाड़काना और जैकाबाद कितने किलोमीटर है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली बॉर्डर है ये जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। और जैसे ही आप सिंध के बॉर्डर पे पहुँचते हैं तो एग्जैक्टली सिंध का बॉर्डर क्रॉस होते ही 10 कदम के ऊपर बलूचिस्तान के अंदर गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स और फिलिंग स्टेशंस जो हैं उनका सिलसिला शुरू हो जाता है। आप ये गाड़ी आपकी है? जी जी सर। तो आप यहाँ पे अभी क्या करवा रहे थे? डीजल डलवा रहे हैं। नहीं तो ये यहाँ पे डीजल आके क्यों डलवाते हैं? यहाँ सस्ता पड़ता है। अच्छा, तो अब आप ये यहाँ पे ये सिंध बॉर्डर से आप सिर्फ अंदर इसलिए आते हैं कि यहाँ से डीजल की टैंकियाँ फुल करवा लें और फिर आगे जाएं? फिर वापस चले जाते हैं डीजल फुल करा के। बहुत ऐसे देहातों के कच्चे के छोटे छोटे रूट्स हैं जहाँ पे ना तो कोई चेक एंड बैलेंस है। उन रूट से फिर सिर्फ ऑयल ट्रांसपोर्ट नहीं होता सिंध के इलाकों के अंदर, और बहुत कुछ ऐसा है जो कि कच्चे के डाकुओं के पास जो असला पहुंचता है उनकी जो ट्रांसमिशन है बताया जाता है कि उनके रूट्स भी यही हैं, और उसके अलावा मंशियात के रूट्स भी यही हैं। तो ये बॉर्डरिंग इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा ये गैर कानूनी तिजारत जो है उसका सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं एक 30,000 लीटर ऑयल के टैंकर के ऊपर खड़ा हूँ, जिसको बाहर से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ट्रक है, लेकिन अंदर जो है वो खुफिया ऑयल की टैंकी लगाई हुई है जिसमें तकरीबन 30,000 लीटर पेट्रोल और डीजल आ जाता है। इसमें 3 मुख्तलिफ खाने बनाए हुए हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि ये जैसे है तो इसके अंदर अगर डीजल डाल दिया जाता है तो इसके बिल्कुल अगली तरफ जो है वो वहाँ पे पेट्रोल डाल दिया जाता है। और इसी तरीके से ये बज़ाहिर जब शाहराह से गुजरता है तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई ट्रक जा रहा है, लेकिन दर हकीकत इसके अंदर 30,000 लीटर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होती हैं। कैसे सिलसिला चलता है? आप गवादर से, जीवानी से लेते हो, कहाँ से लेते हो? यार उधर कभी तुरबत से लोड होता है, कभी पंजूर से, कभी उधर से, कभी इधर से। नहीं तो अब आप क्या कहते हो कि ये जो ऑयल ट्रेड है ये खोला जाए? हाँ, वो खोला जाए, क्या करे, सब मजदूर क्या चीज़ है। और बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में और क्या है आप बताओ। ये डीजल हो जाए तो सारा अपना मजदूरी करता है। अच्छा, ये जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये देखें मेरे बराबर एक गाड़ी खड़ी है, अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये गाड़ी भी ऐसे ही है। अंदर जो है वो ऑयल टैंकर फिट है और बाहर से आपको वो ऐसा लगता है कि जैसे ट्रक है। और इसी तरह से इस पेट्रोल पंप पे मेरे अकब में भी वो 3-4 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और वो भी ऐसे ही है। अगर ये गाड़ी अगर 30,000 लीटर उठाती है तो अगर 4 गाड़ियों का लगाया जाए तो आप देखेंगे 1 लाख से ज़ायद लीटर बनता है। तो 1 लाख से ज़ायद लीटर की गाड़ियाँ इस वक्त भी सिर्फ एक पेट्रोल पंप पे सिंध के बॉर्डर पे खड़ी। मैं इस वक्त अहमेद शाहराह पे बलूचिस्तान और सिंध की सरहदी पट्टी पे मौजूद हूँ। जो मेरे अकब में आप बोर्ड देख सकते हैं जिस पे लिखा हुआ है खुशामदीद सूबा सिंध, हद शुरू ज़िला कंबर शदाद कोट। अब इस कंबर शदाद कोट के बलूचिस्तान के बॉर्डर पे अगर आप देखेंगे तो आप देखें मेरे दाएं जानिब जो हैं ये गैर सरकारी पेट्रोल पंप्स हैं और यहाँ पे भी मुतादिद हैं, और ये यहाँ बाएं जानिब भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और इस शाहराह पे जैसे ही आप बॉर्डर के अंदर आते हैं आपको 20 पेट्रोल पंप्स जो हैं वो सिंध के बॉर्डर पे मिलेंगे। हमारे साथ यहाँ पे इसी कारोबार से मुंसलिक एक ताजिर भी मौजूद है। उन्होंने अपनी शनाख्त ज़ाहिर ना करने पे जो है वो बात करने पे आमादगी का इज़हार किया। उनसे जानेंगे कि यहाँ से सिंध के अंदर ऑयल कैसे जाता है ईरान में। यहाँ से मुख्तलिफ तरीके से होता है, बाइक्स पे जैसे कि मतलब ट्रक्स हैं, मजदा हैं, इस तरह उनमें मतलब छोटे छोटे टैंक लगे हुए हैं, तो उस हिसाब से ही जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे जो इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? कोई यहाँ के जो पेट्रोल पंप मालिकान है उनका इजीली रवानी से हैं या उनको किसी दिक्कत का सामना है?
नहीं इजीली हो जाता है तकरीबन इसका। अच्छा, आपने गुफ्तगू सुनी कि यहाँ से बआसानी जो है वो लाड़काना डिवीज़न के मुख्तलिफ अजला के अंदर पेट्रोल जाता है। यहाँ पे जो पेट्रोल पम्प मालकान हैं वो भी काफ़ी बाअसर हैं, और बॉर्डर के इलाकों में जितने भी बाअसर अफराद और बाअसर बिरादरियाँ हैं वो इस कारोबार में इन्वॉल्व हैं। ये हमने देखा है कि लाड़काना डिवीज़न के जो अजला हैं वो सबसे ज़्यादा कराची के बाद ईरानी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए देखे गए हैं। अब हम बलूचिस्तान से शहजाद कोट के अंदर ज़िले के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये एक मोटरसाइकिल वाले हैं, ये ऑयल लेके जा रहे हैं और ये बग़ैर किसी फुटकुटे के, बग़ैर किसी इससे रोक कर इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये अपनी गाड़ी रोक ही नहीं रहे। हमने काफ़ी बार कोशिश की है। भाईजान गाड़ी तो रोको, 1 मिनट बात तो करो। भाईजान 1 मिनट गाड़ी रोको यार, ये ऑयल है ना, किसी ने रोका नहीं है ऑयल लाते हुए। भाईजान यार बात तो करो गाड़ी रोक के। भाईजान आपने देखा कि ये किसी भी सूरत अपनी गाड़ी रोकने पे आमादा नहीं है और ये गाड़ी रोक नहीं रहे, और ये इस तरीके से ये टैंकर खुलेआम जो हैं वो सिंध के अंदर ये दाखिल होते हैं। अब ये तकरीबन 1000 लीटर ऑयल है जो कि जा रहा है और कहीं ना कहीं जाके ये सिंध के अंदर किसी न किसी पंप पे उतरेगा और इस्तेमाल हो जाएगा। लाड़काना डिवीजन के अंदर बेशतर ऐसे पेट्रोल पंप्स मौजूद हैं जो कि गैर रजिस्टर्ड हैं। खासकर गड़ी खैरों के इलाके के अंदर हमने देखा है कि जितने पेट्रोल पंप्स हैं वो बलूचिस्तान के नरखों पे खुले आम ईरानी तेल फरोख्त कर रहे हैं। लाड़काना के एक सोशल एक्टिविस्ट और मारूफ शख्सियत रियाज मलगानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। हमारा लाड़काना डिवीज़न ऐसे तो स्मगलिंग के हवाले से मशहूर है, क्योंकि लाड़काना डिवीज़न जो है उसकी जो बॉर्डरी एरिया है वो बलूचिस्तान से मिलते हैं और वहाँ पे काफ़ी खुफिया रास्ते हैं जहाँ से स्मगलिंग होती है, और स्मगलिंग में इन्वॉल्वमेंट होती है वो काफ़ी सियासी बड़े लोग उनकी होती है और उसमें पुलिस भी साथ में होती है। जैसे लाड़काना में तो ईरानी पेट्रोल पे पेट्रोल मिलता है, लेकिन वो कीमत जो है वो जो कीमत गवर्नमेंट की होती है उस कीमत में मिलता है, इसमें आवाम को तो रिलीफ नहीं मिलता है। और जो सियासी बंदे वो तो अपने जेब में भर देते हैं, क्योंकि तकरीबन लाड़काना के आप पसगिरदाई में जाके देख लें, जो भी पेट्रोल पंप है तकरीबन किसी सियासी बंदे, क्योंकि मैं नाम तो नहीं लूँगा, वहाँ पे आपको ईरानी पेट्रोल 50% ईरानी पेट्रोल मिलेगा। सिंध और बलूचिस्तान में स्मगलिंग का कारोबार तेजी से पनप रहा है और अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें इसके ऊपर काबू पाने में नाकाम दिखाई दे रही हैं। बज़ाहिर ये कारोबार अगर किसी तरीके से कानून साजी करके इसको सिर्फ बलूचिस्तान की हद तक भी लीगल फ्रेम के अंदर लाया जाए तो वो काला धन लोगों की जेब से निकल के रेवेन्यू की सूरत में वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान को मिलेगा। हुकूमती कॉरिडोर्स का दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश की, जिसमें वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार शामिल हैं। IG सिंध से रब्ता करने की कोशिश की, शर्जील इनाम मेमन से रब्ता करने की कोशिश की, तो उन्होंने इसके ऊपर बात करने से जो है वो इनकार किया या इसको जो है वो नज़रअंदाज करने की कोशिश की। हमें उम्मीद है कि हम कुछ हद तक आवाम को और हुकूमती हलकों को ये बावर कराने में कामयाब रहे हैं कि इस स्मगलिंग के कारोबार को भी हुकूमती तवज्जो की ज़रूरत है। साथी रिपोर्टर्स और कैमरामैन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। शहजाद अली खान, बोल न्यूज़, लाड़काना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।